हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स। इस वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल्स वाला पार्ट एक बार रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपको आसानी होगी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन विद इन द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट इटसेल्फ, मैं कुछ कॉमन बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा वापस से, सो दैट हम कहीं पर भी कंफ्यूज ना रहे। सो जो सैजिटल प्लेन है, इट डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट रीजन। जो फ्रंटल प्लेन है, जो कोरोनल प्लेन है, जिसे हम फ्रंटल या कोरोनल कहते हैं, इट डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू द एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर रीजन, यानी आगे वाला और पीछे वाला। देन वी हैव द ट्रांसवर्स प्लेन व्हिच डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, जो अडल्ट हार्ट है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द हार्ट ट्यूब। और ये जो हार्ट ट्यूब है, इट स्टार्ट्स इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द थर्ड वीक after fertilization, or we can say 18 days after fertilization, and it extends up till the birth of the baby. So in this video, we'll be concerned with the third to fifth week of development taking place in the heart. So initially, जो progenitor heart cells है, it gives rise to the heart tube, and these progenitor heart cells, progenitor yani the initiator or the former of the heart cells, so it originates again from the epiblast region, or ye epiblast region. We can take a look in this diagram that here we have the outermost part, that is the ectoderm. Then जो बीच वाला पार्ट है, which I have drawn in orange color, this is the mesoderm. और जो अंदर वाला पार्ट है, that is जो अंदर वाली लेयर है, जैसे कि हम तीन जर्म लेयर्स पढ़ते हैं, which are the ecto, the meso and the endoderm. तो उनमें से these are the three layers itself. तो इसमें से जो mesoderm है, इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, again depending upon its location. Paraxial यानी close to the center, then we have intermediate, and then we have lateral plate. Or again, we divide the lateral plate mesoderm into the two sections, that are the somatic and the splanchnic. अब somatic को हम parietal भी कहते हैं and splanchnic को हम visceral भी कहते हैं. So somatic is covering our body walls, while जो splanchnic वाला part है, it is covering our yolk sac, and further it will be covering the part of the developing heart. So we'll be taking a look at it very soon. So as we discussed that the progenitor heart cells arise from the primitive streak, that is from here. Here we have the primitive streak, and ये जो cells है, ये अंदर की तरफ move करेंगे, and these cells move towards the lateral plate mesoderm, and specifically it is the splanchnic part of the lateral plate mesoderm. So here you can take a look that we have the splanchnic part of the lateral plate mesoderm, and here ये एक horseshoe shaped स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं द प्राइमरी हार्ट फील्ड. सो द progenitor heart cells which are present near the ectodermal region, which has been derived from the epiblast. तो जो epiblast है, it give rise to all the three layers, that is the ecto, the meso and the endo. तो इसमें से जो ectoderm वाला लेयर है, in it we have the presence of the progenitor heart cells. वो अंदर की तरफ मूव करेंगी and arise near the primitive streak and migrate through the lateral plate mesoderm and forms the blood islands. And these blood islands unite to form the two endocardial tubes. So here, we can take a look that we have the ectoderm, again the dorsal part that is present at the back और जो posterior side वाला part है. Then we have the endoderm यानी जो आगे की तरफ present है. Here we have in blue the notochord, जो कि आगे जाके वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म करेगा. देन सराउंडिंग इट वी हैव द सोमाइट्स. सराउंडिंग द सोमाइट्स वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएट mesoderm, and further here we have the somatic layer of the lateral plate mesoderm,
and the splanchnic layer of the lateral plate mesoderm. And इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, दिस कैविटी इज रेफर्ड एज द इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी. और आगे चल के यही इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी विल फॉर्म द प्लूरल कैविटी, द पेरिकार्डियल कैविटी एंड द पेरिएनल कैविटी. आगे यही जो एंडोडर्मल लेयर है, दैट इज represented here in yellow color, it will come closer and will form a close structure here which can be seen. यहाँ पर ये दोनों पार्ट आने चाहिए थे, दैट इज द येलोइश पार्ट, और ज्वाइन होके इट वुड हैव फॉर्म्ड समथिंग लाइक दिस. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज फ्रॉम द स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म विल कम टुगेदर and will form the structure which I have drawn here. So here we can see जो अंदर वाला part था, that is the endoderm, it gives rise to the gut tube which is originating from the endoderm, and also the endoderm give rise to the yolk sac, and covering the yolk sac as well as the gut tube we have the presence of the splanchnic mesoderm. So इसीलिए जो splanchnic lateral plate mesoderm है, it covers the visceral part of the body. तो यहाँ पर वी ऑल्सो हैव द डॉर्सल एओर्टा एंड द एंडोथेलियल ट्यूब. और ये जो एंडोथेलियल ट्यूब है, दीज आर द टू पेयर्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच यू कैन सी हियर. और ये दोनों आगे जाके फॉर्म करते हैं वाया फ्यूजन और यूनाइटिंग द डेवलपिंग हार्ट ट्यूब. सो हियर अगेन कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट, that is जो progenitor heart cells है, these after migrating forms the blood islands, and these blood islands unite to form the two endocardial tubes जो कि हमने अभी देखा. and these two endocardial tubes form via fusion via the lateral folding. तो इसमें एक प्रोसेस होता है that is known as lateral folding, and with that process ये जो दो endocardial tubes है, it forms the single heart tube. Further, on day 21, जो myocardial progenitor cells है, they will surround the part of the endocardium, the myocardium, and also secrete the cardiac jelly, which is present between the myocardium and the endocardium. अब suppose ये myocardium है, and this here we have the endocardium. So in between it, we have the presence of the cardiac jelly, and this cardiac jelly is being secreted by the myocardial progenitor cells. Further, we have the development of the three layers of the primitive heart, that is the endocardium, the myocardium and the epicardium. Out of it हमने देखा कि जो endocardium है और जो myocardium है, it has been derived from the yolk sac, or we can say the endoderm itself. लेकिन जो epicardium है, it has been derived from the proepicardial organ, और ये जो प्रोएपिकार्डियल ऑर्गन है, ये वही पार्ट है विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल पार्ट ऑफ द कॉर्डल एंड, यानी जो टेल एंड वाला पार्ट होता है ऑफ द हार्ट ट्यूब. सो हियर वी कैन टेक अ लुक. ये जो टेल एंड वाला पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ पे जो प्रोएपिकार्डियल प्लेट, जो प्रोएपिकार्डियल ऑर्गन है, वो प्रेजेंट होता है, एंड इट ऑल्सो कवर्स द पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम. सो हियर कमिंग बैक अगेन, दैट इज जो सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इट फोल्ड्स अगेन, और ये जब अंदर की तरफ मूव होता है, द सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म. सो यहाँ पर हम वापस से जो तीनों जर्म लेयर्स थे वो देखेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, फर्स्ट वी हैव द एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी प्रेजेंट था. हियर वी हैड आवर एक्टोडर्म. देन इनसाइड इट वी हैड द सोमैटिक पार्ट ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म. तो दिस हियर इन ब्राउन is representing the somatic layer of the lateral plate mesoderm. So here this part is the somatic layer of the lateral plate mesoderm जो कि body cavity को cover करती है. Then inside it we have the presence of the pericardial cavity, और ये pericardial cavity is derived from the intraembryonic cavity which we discussed previously. Further, ये जो इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी है, ये और दो कैविटीज में डिवाइड होंगी, दैट इज द प्लूरल कैविटी एज वेल एज द पेरिएनल कैविटी. देन जो एंडोकार्डियल ट्यूब्स थे, दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एंड इट गिव्स अस द हार्ट, दैट इज द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब. सो ये जो गोला बनाया है मैंने, दैट इज द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब.
सो हियर आई एम ड्राइंग इट अगेन। तो इसमें जो बाहर वाली लेयर थी, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द मायोकार्डियम। सो ये जो अंदर में प्रेजेंट है, दैट इज आई एम ड्राइंग इन पर्पल कलर, ये एंडोकार्डियम है, एंड सराउंडिंग इट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक जेली, और ये कार्डियक जेली बीच में प्रेजेंट है। तो इसमें से जो एंडोकार्डियम है, इट हैज बीन derived फ्रॉम द यूनिसन ऑफ द एंडोकार्डियल ट्यूब्स। देन दोनों स्ट्रक्चर्स, दैट इज जो डॉर्सल एओर्टा है एज वेल एज द एंडोकार्डियम, बोथ आर अटैच्ड टू वन अनदर। अगर हम इसे 3D व्यू में देखते हैं, देन बोथ द स्ट्रक्चर्स, दैट इज द डॉर्सल एओर्टिक एंड द endocardium, are attached to one another. So if suppose here we have our endocardium, then we have our myocardium. तो इसी के ऊपर we have the presence of the dorsal aorta. It is in close proximity, और इन दोनों के बीच में we have the presence of the foregut, which I have drawn here. So here this yellowish part, it is the foregut, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है, these are the dorsal aorta. Then here जो पिंक में स्ट्रक्चर्स है, these are again the same intermediate mesoderm, and again we have the somites surrounding the neural tube, which is present between the notochord and the neural crest cells. तो अभी तक हमने जो कोरोनल व्यूज थे, दैट इज द फ्रंटल प्लेन, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड करते हैं, वो वाले व्यूज देखे। अब इसमें नाउ विल बी टेकिंग अ लुक अगेन फ्रॉम द कोरोनल सेक्शन, बट विथ अनदर डिफरेंट डायग्राम, एंड अगेन विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन, कि ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे एम्ब्रियो दिख रहा है इन द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द हार्ट। जो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है, इन इट वी कैन सी दैट इनिशियली वी हैव आवर हार्ट ट्यूब। अब ये जो हार्ट ट्यूब है, ये एक फाइनल स्ट्रक्चर है विच इज बिन derived फ्रॉम द मॉडिफिकेशंस। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप याद रखिए, एंड हम अब इसका प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है, दैट इज ये कैसे कार्डियोजेनिक एरिया फॉर्म होते हैं, एंड द प्रिमिटिव ब्लड वेसल्स विच विल बी फॉर्मिंग द डॉर्सल एओर्टा, एंड देन विल बी टेकिंग लुक दैट कि कौन सा पार्ट किस रीजन में लाई करता है। तो ये डायग्राम आप याद रखिए। So here, starting with the development of the heart in the coronal section, here first we have the epiblast, and अगर हम इस epiblast को आगे की तरफ निकालते हैं, then we can see the layer of mesoderm which is present below the epiblast. तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि we had first the ectoderm, then after ectoderm we had our mesoderm. तो ये जो ectoderm है which has been derived again from the epiblast is the topmost layer. तो जो हमने एपिब्लास्ट का पार्ट है वो आगे की तरफ लिया, ताकि हम जो पीछे मेसोडर्म में एक्टिविटीज हो रही है उसे हम देख सके। तो हियर वी हैव द एपिब्लास्ट रीजन, और ये एपिब्लास्ट रीजन में फॉर्म होता है द प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक हमने देखा, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक में प्रेजेंट होते हैं द प्रोजेनाइटर हार्ट सेल्स, एंड एज वी कैन सी दैट द एपिब्लास्ट कैन गिव राइज टू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स, और इन शॉर्ट मैं यहाँ पर इसे सीपीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन मूविंग अहेड, ये जो कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स है ये माइग्रेट करेंगे वाया द प्रिमिटिव स्ट्रीक। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी कि जो कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स है दे विल माइग्रेट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक, एंड इसे हम कहते हैं द इंग्रेशन। इंग्रेशन यानी इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स, एंड दे विल मूव क्रेनियोलैटरली। क्रेनियोलैटरली मतलब ऊपर की तरफ, और लैटरल साइड पे यानी इस साइड पे। तो हियर वी हैव, सिंस जो कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स है ये ऊपर की तरफ क्रेनियोलैटरली मूव कर रही है, सो वी टर्म इट एज द कार्डियोजेनिक एरिया। यानी कार्डियोजेनिक एरिया यानी यहाँ पर आगे डेवलपिंग हार्ट फॉर्म होगा। तो इनिशियली जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है, वहां पर स्प्लैंकनिक मेसोडर्म में जो हॉर्सशू शेप्ड हार्ट फॉर्म होता है, इट इज टर्म्ड एज द फर्स्ट हार्ट फील्ड। अब ये जो फर्स्ट हार्ट फील्ड है इसे हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो ये जो ब्लड आइलैंड्स है दे विल यूनाइट एंड विल फॉर्म द कार्डियक क्रस्ट। अब इसे हम कह रहे हैं द कार्डियक क्रस्ट, एंड इट इज फॉर्मिंग द फर्स्ट हार्ट फील्ड, एंड ये जो फर्स्ट हार्ट फील्ड है इट विल गिव राइज टू द लेफ्ट एट्रियम, द राइट एट्रियम, द
the left ventricle and the part of the right ventricle. Then ये जो first heart field है, again we have development of one more heart field which is known as the second heart field. और ये जो second heart field है, it gives rise to the rest of the right ventricle and the other outflow tracts. अब इसमें जो outflow tracts है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये टर्म्स आपके नए होंगे शायद, दैट इज द बल्बस कॉर्डिस एज वेल एज ट्रंकस आर्टेरियोसिस. तो ये दोनों जो है इट विल गिव राइज टू आवर फर्दर डेवलपिंग वेसल्स दैट आर द पल्मोनरी ट्रंक एज वेल एज द एओर्टा. तो फाइनली जैसे कि हमने कहा था कि यही स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं कि कैसे डेवलप हो रहा है. सो फाइनली इट इज फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर दैट इज एट द 18th डे. नाउ अब हम देखेंगे द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द heart tube. So here we have our amniotic cavity first on which is formed by the ectoderm. Ectoderm जो outermost region था, this part. Then जो endoderm है it will form the yolk sac and covering both the amniotic cavity and the yolk sac. अब जो mesoderm amniotic cavity को cover करता है we refer it as the parietal or the somatic mesoderm, whereas जो मीसोडर्म योग सैक को कवर करता है वी रेफर इट एज द स्प्लैंक्निक और द विसरल मीसोडर्म. तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द मीसोडर्म इट इज टर्म्ड एज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी. अब सिमिलरली ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी है, जैसे मैंने पहले बताया था दैट इट डेवलप्स इनटू द प्लूरल कैविटी, द पेरिकार्डियल कैविटी एज वेल एज द पेरिएनल कैविटी. सो हियर वी हैव द एंडोकार्डियल ट्यूब्स. अब ये जो एंडोकार्डियल ट्यूब्स है ये डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम दीज आर डेवलप फ्रॉम द ब्लड आइलैंड्स. और ये जो ब्लड आइलैंड्स है विल बी डिस्कसिंग इट हियर. सो अगेन आई वांट टू रिवाइज दिस स्ट्रक्चर टू यू. तो हियर इन ब्लू आई हैव ड्रॉन द amniotic cavity which is part of the ectoderm. Then we have the yolk sac which I have drawn in yellow color which is a part of the endoderm. तो जो part of mesoderm yolk sac को cover करता है it is referred as the splanchnic mesoderm. जो पार्ट ऑफ द मीसोडर्म कवर करता है टू द एमनियोटिक कैविटी इट इज रेफर्ड एज द पैराइटल और द सोमैटिक मीसोडर्म. जो कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन द मीसोडर्म इट इज रेफर्ड एज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी. और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी है इट फर्दर डेवलप्स इनटू द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैविटीज दैट इज द प्लूरल कैविटी कवरिंग द लंग वाला पार्ट, द प्लूरल कैविटी, द पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल यानी सराउंडिंग द हार्ट, पेरी refers to surrounding, cardial refers to heart, perianal cavity refers to the structures surrounding the anal region. Now moving ahead, जो ये तीनों layers हमने डिस्कस की that is जो mesoderm है, जो outer वाला है that is the parietal, again we have splanchnic, then this is the ecto part and this is the endo part. तो इन जो लेयर्स है इनमें कुछ सेल्स डेवलप होते हैं. तो जो फर्स्ट सेल्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मायोकार्डियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म. देन वी हैव द एंडोडर्मल ट्यूब्स, देन वी हैव द डॉर्सल एओर्टे. अब जो एंडोडर्मल ट्यूब्स है दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्म एज वेल एज द मेसोडर्म, यानी ये yolk sac as well as the part of the mesoderm which is covering it, that is the splanchnic mesoderm. Then we have the dorsal aorta which is formed by the blood islands which is close to the midline, यानी जो बीच वाला पार्ट है it is forming the part of the dorsal aorta. Then वापस से जो lateral embryonic folding है वो occur होती है and due to this reason the fusion of endocardial tubes takes place. अब जो endocardial tubes थे वो दोनों fuse हो जाते हैं and they form the heart which we can see in the structure, that is the endocardial tube. अब ये endocardial tube is formed of the epicardium, the myocardium as well as the cardiac jelly, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था. And further here again ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जो हमने वापस से देखना है, that is similar to the one which we have seen previously. जो outermost है that is the amnion or the amniotic membrane which is derived from the ectoderm. Then we have here the neural tube. अब ये जो neural tube है it lies between the neural crest cells as well as the notochord. So here we have the notochord and then surrounding the notochord we have the presence of the dorsal aorta. Further जो foregut है वो वाला part भी completely close हो जाता है and here moving inside from the amniotic membrane to the inside we have the presence of the surface ectoderm. Then we have the presence of the dorsal mesocardium
अब ये जो डॉर्सल मेसोकार्डियम है, यही वो रीजन है विच गिव राइज टू द ट्रांसवर्स साइनस इन द हार्ट इटसेल्फ. And further, here we again have the pericardial cavity, which has been derived from the intraembryonic cavity. Then here we have the parietal as well as the somatic part of the mesoderm, which contribute to the body wall formation. So ये जो part है, this part, it is representing the parietal or the somatic part of the mesoderm. Then here we have the splanchnic mesoderm, which is in close proximity to the foregut and as well as the dorsal myocardium. And further, यही pericardial cavity में we have the heart tube, that is the endocardial tube, and it is the heart tube which will derive into the regions of the epicardium, the myocardium as well as the cardiac gyrus. So here we'll be discussing the primitive heart at day 22. First we have the region of the, नीचे से स्टार्ट करेंगे, that we have the sinus venosus. अब ये sinus venosus के दो हॉर्न्स होते हैं, that is the right horn as well as the left horn. Then we have the presence of the primitive atrium. Then we have the presence of the primitive ventricle, which has been derived from the endocardium. And after the primitive ventricle, we have the outflow tract, that is the bulbus cordus as well as the truncus arteriosus. Some texts also refer the truncus arteriosus as the proximal part of the bulbus cordus. Then ahead of truncus arteriosus, we have the presence of the aortic sac, और यही aortic sac give rise to the aortic arches, जो कि हम देखते हैं, which give rise to the brachiocephalic trunk as well as the subclavian artery and the right common carotid artery. So again here surrounding this region we have the presence of the cardiac jelly, and further surrounding the cardiac jelly we have the presence of the myocardium, and surrounding the myocardium we have the presence of the epicardium, which has been derived from the proepicardial plate or the proepicardial organ. Further अगर हम इसे at adult heart stage देखें तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, it gives rise to the aorta as well as the pulmonary artery. जो bulbus cordus है, it gives rise to the smooth part of the left ventricle as well as the right ventricle. तो जैसे कि हमने ग्रॉस एनाटॉमी वाले पार्ट ऑफ हार्ट में कवर किया था, that heart has two types of surfaces, that is the smooth surface as well as the trabeculated surface. तो जो smooth surface है, it has been derived from the bulbus cordus वाला part, क्योंकि जो वेसल वाला पार्ट है, it is originating or giving rise to the part of the heart, so it is smooth, whereas जो primitive ventricle as well as the primitive atrium वाला part है, ये जिन regions को origination दे रहा है, it has the trabeculations in it. So the primitive atrium है as well as the primitive ventricle, it gives rise to the trabeculated left ventricle as well as the right ventricle, and जो primitive atrium है, it gives rise to the trabeculated atria. Further, जो sinus venosus है, it gives rise to the right atrium as well as the coronary sinus. अब जो राइट एट्रियम है वो राइट साइड से आएगा और जो कोरोनरी साइनस है वो लेफ्ट साइड से आएगा. तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ये फंडा है, दैट जो कोरोनरी साइनस है, इट ड्रेन्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेफ्ट हॉर्न. देन वी हैव द कार्डिनल वेन्स. अब जो कार्डिनल वेन्स है, दे गिव राइज टू द सुपीरियर वीना कावा एज वेल एज द इंफीरियर वीना कावा. सो विद इन द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया, इट वाज टोटली रिगार्डेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट इटसेल्फ. देयर वाज नो वेसल इन्वॉल्विंग द हार्ट. तो अभी हम देख रहे हैं दैट इज द कार्डिनल वेन्स, एंड दीज कार्डिनल वेन्स गिव राइज टू द superior vena cava as well as the inferior vena cava which drain into the right atrium. And ये जो superior vena cava है, this it is derived from the right common cardial veins as well as the right anterior cardinal veins, whereas जो inferior vena cava है, it has been derived from the posterior cardinal veins. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं that here we have the region, the smooth region of the heart, whereas here we have the trabeculated region of the heart. तो जो trabeculated region of the heart है, it has been derived from the primitive atrium as well as the primitive ventricle, लेकिन जो smooth part of the heart है, it has been derived from the vascular part or the vessels part of the heart. Further, we will be discussing now the septation of the heart, but before that we will be discussing about the development of the heart tube. अभी तक हमने heart tube को form कर लिया, अब हम देखेंगे कि वो कैसे आगे की तरफ move हो रहा है. तो हमने अभी तक डिस्कस किया रिगार्डिंग द ट्रंकस आर्टेरियोसिस, the truncus arteriosus, the bulbus cordus, primitive ventricle, primitive atrium, the sinus venosus. अब जो
प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यू कैन सी इट इज अंडरगोइंग द फोल्डिंग, और ड्यूरिंग दिस फोल्डिंग ये जो वेंट्रिकुलर पार्ट है इट बल्जेस, और ये पीछे की तरफ होता है, एज वेल एज इट मूव्स डाउनवर्ड्स। तो हियर वी कैन नोट जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है इट इज अंडरगोइंग फोल्डिंग, एंड ये फोल्डिंग की वजह से जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है इट बल्जेस, और इसी फोल्डिंग की वजह से इन द अडल्ट हार्ट वी सी दैट जो लेफ्ट एट्रियम है एज वेल एज जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दे आर बोथ प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट, while जो राइट एट्रियम है एज वेल एज जो राइट वेंट्रिकल है दे आर प्रेजेंट ऑन द anterior aspect. So it was the general development of the heart tube. So it is the same diagram which I have discussed previously, and due to the reason that right ventricle is present closer to the chest, तो कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है देन इट इज द पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल व्हिच इज मोस्ट अफेक्टेड, whereas जो लेफ्ट वेंट्रिकल है since it is present posteriorly along with the left atrium, so it is less prone to the traumatic injury which is taking place from the anterior aspect. Further, another process takes place which is known as the cardiac looping, and due to this process it leads to the left and right orientation in the chest, and the important molecules which are responsible for the cardiac looping are cilia as well as the renin. So due to this reason left and right positioning of the heart है it is due to the cardiac looping. अगर ये नहीं होता है then जो तो कार्डियक लूपिंग का इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज कार्डियक लूपिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर कार्डियक लूपिंग एब्सेंट होता है देन द heart would be present on the right hand side of the body instead of being normally present on the left hand side of our body. तो अब हम पढ़ेंगे regarding the atrial septum development. अब जो atrial septum development है along with the ventricular septum development ये क्यों होता है, बिकॉज जो हमारा हार्ट ट्यूब था वो हमने देखा था कि उसमें कोई सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी एक ही चेंबर प्रेजेंट है। अब इस एक चेंबर को 4 चेंबर फॉर्म करने के लिए दैट इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों के लिए वी नीड the formation of the septations. Along with that ये septations जिस तरह से होते हैं उनका भी अपना importance है, so we'll be discussing it along with that. Now starting with the first part that is कि septum primum जो form होता है। अब septum primum से पहले हम डिस्कस करेंगे that this part here is the atria in the developing phase, while this here is our ventricle जो कि वापस से डेवलपिंग फेज में है। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टेशन है along with the atrial septation ये दोनों सब्सिक्वेंटली सेम टाइमिंग पे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं that in some references that the atrial septation takes place earlier as compared to that of the ventricular septation. लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं दैट इफ कंपेयर्ड विद वेंट्रिकुलर सेप्टेशन थोड़ा सा जल्दी फॉर्म हो जाता है द एट्रियल सेप्टेशन। सो मूविंग अहेड वी हैव द फर्स्ट पार्ट टू डिस्कस दैट इज द टू साइड्स। ये ऊपर वाली साइड दैट इज द क्रेनियल साइड, जो नीचे वाली साइड है टुवर्ड्स द टेल दैट इज द कॉर्डल साइड। अब क्रेनियल साइड से एक सेप्टा यानी सिंपली डिवाइड करने वाला एक सेप्टा ओरिजिनेट होता है। ये जो सेप्टा है ये डिवाइड करेगा जो एट्रियल डेवलपिंग एट्रियम है इनटू द राइट एट्रियम एज वेल एज द लेफ्ट एट्रियम। अब इसमें से ये डायरेक्टली नहीं होता, जो सेप्टम प्राइमम है इट विल मूव हाफ वे एंड इट विल नॉट रीच अप टू द एंडोकार्डियल कुशन। तो यहाँ पर जो ब्लैक में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसे हम कहते हैं द एंडोकार्डियल कुशन। अब एंडोकार्डियल कुशन का बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। अब एंडोकार्डियल कुशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद इन द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट बिकॉज इट गिव राइज टू द वेरियस स्ट्रक्चर्स सच एज द ट्राइकस्पिड वॉल, द बाइकस्पिड वॉल और द माइट्रल वॉल। देन वी हैव द एट्रियल सेप्टेशन यानी जो एट्रियल सेप्टम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम अब हम थोड़ी देर में देखेंगे
जो कि नीचे की तरफ फॉर्म करेगा टू डिवाइड द वेंट्रिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल एज वेल एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के लिए भी जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले करता है। तो सिंस जो सेप्टम प्राइमम है ये हाफ में ही आता है, आधे रास्ते पे आके रुक जाता है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट देयर इज एन ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एज वेल एज द लेफ्ट एट्रियम। अब इस ओपनिंग को हम कहते हैं द फोरामन प्राइमम। अब फोरामन प्राइमम इसलिए कहा क्योंकि ये फर्स्ट ओपनिंग है, और सेप्टम प्राइमम भी इसीलिए कहा बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सेप्टम टू बी डेवलप्ड। तो इसमें से जो राइट एट्रियम में है वो ब्लड आता है, एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम द सुपीरियर वीना कावा एज वेल एज द इंफीरियर वीना कावा ब्लड ड्रेन करेगा इनटू द राइट एट्रियम। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, बिकॉज अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड विच इज इन स्टिल डेवलपिंग फेज, और राइट वेंट्रिकल से अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है टू द लंग्स, तो इसमें दिक्कत यह है कि अभी फीटस जो है इट कैन नॉट रेस्पायर, सो जो ऑक्सीनेशन है ब्लड का इट वुड नॉट टेक प्लेस इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो भी ऑक्सीनेशन ऑफ द ब्लड है इट इज करंटली इन द फीटस टेकिंग प्लेस वाया द प्लासेंटा। तो जो प्लासेंटा है विच इज द आर्टरी, दैट इज द प्लासेंटल आर्टरीज विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मदर्स वूम, तो वो नरिश करती है टू द फीटस एज वी ऑल नो। तो इसमें से जो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा टू पंप इनटू द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, सो इसकी वजह से ये एक बाईपास पाथवे है, दैट इज द फोरामेन प्राइमम एक्ट एज अ बाईपास पाथवे सो दैट ब्लड फ्लो करे फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाए इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है इट विल बी पम्प्ड आउट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि नॉर्मली जैसे ह्यूमंस में होता है इन द अडल्ट ह्यूमंस। अब जैसे जैसे ये जो सेप्टम प्राइमम है ये क्लोज आता है टू द एंडोकार्डियल क्वेश्चन, जो फोरामेन प्राइमम है वो उसकी साइज छोटी हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस रीजन जो बाईपास पाथवे है वो क्लोज ना हो, इसकी वजह से जो सेप्टम प्राइमम है it undergoes a process known as apoptosis, and due to this process of apoptosis एक दूसरा फोरामेन फॉर्म होता है which is referred as the foramen secundum। अब ये फोरामेन सेकंडम जो फॉर्म हुआ है it is from the apoptosis, or we can say the programmed cell death of the septum primum region in the upper half, so that जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो फ्लो हो सके इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब इसमें जैसे जैसे ये क्लोज होने के लिए पास आता है, देन वी हैव द फ्यूजन ऑफ बोथ द सेप्टम प्राइमम एज वेल एज द एंडोकार्डियल टिश्यू। और एंडोकार्डियल क्वेश्चन ये जो ब्लैक में अभी ट्रायंगल फॉर्म किया है इट शोज दैट ये ऊपर की तरफ ग्रो हुआ है, दैट इज द एंडोकार्डियल टिश्यू हैज आल्सो ग्रोन ऑन द अपर हैंड साइड while the septum primum has grown on the downward side, so that it could lead to the closure of the foramen primum। अब इस स्ट्रक्चर को क्लोज होने की वजह से जो पूरा बाईपास पाथवे है इट इज कंप्लीटली फ्रॉम द फोरामेन सेकंडम इटसेल्फ। अब नाउ वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टम सेकंडम। अब सेप्टम सेकंडम जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड डेवलप होता है टू द फोरामेन प्राइमम। सिंस ये यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, सो वी कैन नो दैट जो सेप्टम सेकंडम है इट इज डेवलपिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एंडोकार्डियल ऑफ द सेप्टम प्राइमम। तो यहाँ पर जो फोरामेन सेकंडम है इट हैज बीन कवर्ड वाया द सेप्टम सेकंडम। अब ये जो सेप्टम सेकंडम है इसकी जो बॉर्डर है, जो लोअर मोस्ट बॉर्डर है, इसे हम कहते हैं द लिम्बस। तो इसके वजह से जैसे हमने ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ अडल्ट हार्ट में पढ़ा था कि जो फोसा ओवालिस होता है, अब उस फोसा ओवालिस की जो बॉर्डर होती है वो शार्प होती है और उसे हम कहते हैं द लिम्बस। तो ये वही लिम्बस है which is the sharp border of the fossa ovalis present in the atrial septum। So here we have the development of the fossa ovalis। So here we have the development of the foramen ovalis। So here is a typo, this is foramen ovalis। अब ये जो foramen ovalis है it is made up of the septum primum and the rest septal wall made up of the septum secundum। यानी
जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द सेप्टम प्राइमम, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द सेप्टम सेकंडम। क्लियर? देन मूविंग एहेड, अब ड्यू टू दिस जो राइट एट्रियम में वी नो दैट प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है, दैट इज द ऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड इट हैज टू ट्रैवल टू द लेफ्ट एट्रियम। सो ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। all the physiological functions which occur in our body is either mostly due to the pressure gradient। तो similarly यहाँ पर भी वही function काम करता है, that there is a pressure gradient due to which there is the transfer of blood from the right atrium to the left atrium, and this positive sign is because a lot of blood in the right atrium is coming from the umbilical vein itself। umbilical vein एक exception है to carry oxygenated blood, whereas बाकी जो भी सारे veins है apart from pulmonary vein, and we have another exception that is the pulmonary veins which again carry oxygenated blood। so ये दो veins को छोड़ के हमारे बॉडी में बाकी सारे veins जो है they will carry the deoxygenated blood, whereas negative यहाँ पर represent कर रहा है the less blood supply in the left atrium, and due to this reason जो blood यहाँ पर आ रहा है it will exert a force on this wall, that is the septal wall, and it will force the septum primum to move। तो जो septum primum है वो अंदर की तरफ मूव होगी, and due to this we have the flow of blood from the right atrium here to the left atrium, and so we call this path as the foramen ovale। so as you can note here that foramen ovale is not specifically a foramen which is present, but rather it is more like a pathway which is allowing the blood from the right atrium to the left atrium। Then, due to the physiological changes in the fetal circulation and the adult circulation, since pulmonary circulation activate हो जाता है after birth, so there is a reversal in the pressure gradient, and so there is left to right pressure gradient। Due to this pressure gradient built in the left atrium, there will be no flow now towards the right hand side of the heart, that is the right atrium। और यहाँ पर आप एक बात ये नोटिस कर सकते हैं that fossa ovalis जो है, since it is only a layer thick, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं that ये पूरा रीजन जो है it is made up of two layers, that is the septum primum and the septum secundum। but ये जो पार्ट है नीचे वाला it is only made up of the septum primum, and due to this reason जो septum primum है यही फॉर्म करता है द फोरामेन ओवाले का डिप्रेशन, क्योंकि वो एक वॉल थिक ही है, whereas जो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम जो है due to the presence of both the walls, that is the septum primum as well as septum secundum, दोनों वॉल के होने की वजह से दोनों थिक रहते हैं, एंड ड्यू टू दिस जो एट्रियल सेप्टम है वो कंप्लीटली थिक है, whereas only in the region of the foramen ovale it is one layer thick। so here then we have the closure of the foramen ovale after birth, still the walls are separate, and in most of the people they fuse in the adult life, और अगर ये नहीं होते हैं फ्यूज still there is not as such problem created due to it। so ये था हमारा atrial septation due to which जो एट्रिया है वो septation फॉर्म करता है, and it leads to the formation of the two chambers, that is the right atrium as well as the left atrium। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट द एंडोकार्डियल क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच विल डेवलप इनटू द एट्रियल सेप्टम, द वेंट्रिकुलर सेप्टम, द एवी वॉल्स दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एज वेल एज द सेमिलुनर वॉल्स। सेमिलुनर वॉल्स वो वॉल्स जो पल्मोनरी ट्रंक एज वेल एज जो एओर्टिक ट्रंक के पास प्रेजेंट होते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेप्टम व्हिच विल बी डिस्कसिंग इज द एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। अब नाम से पता चल रहा है दैट इट इज एओर्टिको पल्मोनरी, मतलब कि ये प्रेजेंट होगा बिटवीन द एओर्टा एज वेल एज द पल्मोनरी ट्रंक। तो जो हमने डिस्कस किया था दैट द ट्रंकस आर्टेरियोसिस, तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है द एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम टू डिवाइड द एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द डिफरेंट वेसल्स। अगर ये नहीं होता है देन इट विल लीड टू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, एंड ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से साइनोटिक कंडीशंस भी अकर होती है which are leads to the bluish or pale skin of the body। तो ड्यू टू विच
जो aorticopulmonary septum है, it is originating primarily from the neural crest cells, which are the migrating cells all over the body. Then they migrate to the truncal and the bulbar ridges, in which we discussed about the bulbar cordis as well as the truncus arteriosus. And so it is responsible for the separation of the aorta as well as the pulmonary arteries and fuses with the interventricular septum. So ये एक फ्यूजन है विद द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सो दैट जो ब्लड का पाथ है फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक वो पल्मोनरी ट्रंक में ही जाए और जो एओर्टा से है वो एओर्टा के अंदर ही जाए. दैट इज द ऑक्सीनेटेड ब्लड शुड ट्रैवल ओनली इन द एओर्टा एज वेल एज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड शुड ट्रैवल इन इट्स स्पेसिफिक पाथ, दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक. जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलपमेंट. अब जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलपमेंट है, इन इट वी हैव फर्स्ट एज वी डिस्कस्ड नाउ द एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम. अब इनिशियली जैसे कि एट्रियम में भी सिंगल चेम्बर था, तो इनिशियली वेंट्रिकल भी सिंगल चेम्बर रहता है. देन देयर इज ओरिजिनेशन ऑफ द मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. देन जो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम है, इट फ्यूजेस विद द मस्कुलर सेप्टम, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया दैट इट फ्यूजेस विद द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. और जो वेंट्रिकल का पार्ट है, इट अंडरगोस सम ट्विस्टिंग और फोल्डिंग, एंड ड्यू टू विच जो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम है, इट फ्यूजेस विद द मस्कुलर सेप्टम. फाइनली जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, इट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सिंस ये एक कनेक्शन का पॉइंट करता है, सिंस ये वेंट्रिकल का अगर सेप्टम है तो इट विल कनेक्ट टू द एंडोकार्डियल क्वेश्चन. सिमिलरली इट इज कनेक्टिंग टू द एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम, एंड ऊपर से वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द एओर्टिक द एट्रियल सेप्टम. So that is it for this video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you're new here, do consider subscribing to We the Doctor, since we post new medical related content every week. Thank you.